Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video, we are going to talk about how to identify if we have whatever curve that is given to us, whether it is a graph of a function or not, what happens when we change units in the graph, or what happens when we shift the graph. So अलग अलग तरीके के सिनेरियोज ग्राफ के रिलेटेड हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे. So before we move on, if you are new to my channel, I make videos on economics, mathematics, and statistics, and this is the series that we are running for mathematical methods of for economics semester 1 course. If you are from a BA economics honors background, so this series is going to be very helpful for you. And most of the topics that we are covering here, these are basics. So आप maths की कोई भी branch या कोई भी subject अगर आप पढ़ रहे हैं, these are the concepts which will form the backbone of whatever course that you are studying. So if you're new here, if you like this video, if you watch it till the end, please consider subscribing to my channel. And for those of you who've been connected with me, thank you so much. It gives me immense pleasure to make videos for you. So without spending any more time, let's directly get into the topic for today, which is talking a little bit about different topics for graphs. All right. So the agenda for today's lecture is going to be talking about how do we know जो भी कर्व हमें दिया है वो किसी एक ग्राफ किसी एक फंक्शन का ग्राफ है या नहीं. What happens when we change units in a graph and what happens when we shift the graph. So अगर हमारे पास कोई फंक्शन है उसमें हम छोटे से ट्वीक करें तो उनके ग्राफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे. We are going to talk about that. So first things first, let's begin talking about the first topic. So सबसे पहले तो my idea is how to identify if a curve represents a function. So in one of the previous videos, we talked about what is the definition of function, what is the exact definition of a function. So if you have not watched that video, I'll link it. You can just click on the link above. It might be showing here anywhere on the screen. So you can watch that. If you already know what a function is, we can begin our discussion here. Okay. So सबसे पहले मुझे identify करना है कि मुझे कोई भी एक ग्राफ दिया हुआ है, कोई एक कर्व दिया है, वो एक्चुअली किसी एक फंक्शन का ही ग्राफ है कि नहीं. ठीक है. I have to कंफर्म दैट. सो सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं, फंक्शन के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, फंक्शन के लिए फंक्शन को डिफाइन करने के लिए व्हाट डिड वी से, फंक्शन इज नथिंग बट अ रूल विच असाइंस वैल्यूज फ्रॉम द डोमेन टू रियल लाइन, जो कि हम लोग बोल देते हैं दैट इज द जो कि हम बोल देते हैं दैट इज द रेंज ऑफ दैट फंक्शन. ठीक है. सो फंक्शन इज नथिंग बट अ रूल which assigns to each point x in the domain a unique value, a unique y value. ये हमने देखा था. दिस वाज आवर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. तो कोई भी जो भी मेरे डोमेन में एक्स वैल्यूज हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे यूनिक वाई वैल्यू मिले. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक एक्स वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे एक से ज्यादा वाई वैल्यूज मिल रहे हैं. आई शुड हैव अ यूनिक वाई वैल्यू. इफ दैट इज द केस, दैट इज फाइन, दैट इज अ फंक्शन. सो जब हम लोग कर्व्स, कोई भी कर्व मुझे दिया हुआ है उसमें भी मुझे यही चेक करना है कि क्या एक यूनिक एक्स के लिए क्या एक पर्टिकुलर एक्स के लिए यूनिक वैल्यूज ऑफ वाई ही आ रही हैं या नहीं. सो अब मैं क्या करूंगी, I will draw a few graphs and I will ask you whether this represents the graph of a function or not. Okay. So for example, let's say I am plotting, let's say, a graph like this. Okay. So this is my x-axis, this is my y-axis, and let's say I have a graph like this. Okay. And if I ask you whether this is a graph of a function or not, so आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको यूजुअली बेसिकली हमें हर पॉइंट पे चेक क्या करना होता है कि अलग अलग एक्स पॉइंट्स पे मेरे फंक्शन जो y है उसकी एक ही वैल्यू आनी चाहिए. सो जैसे अगर x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू ये हो गई,
x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू इतनी हो गई, x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू इतनी हो गई, x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू इतनी हो गई। सो डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस के लिए y की वैल्यू यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि एक सिंगल वैल्यू ही है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं किसी इस तरीके के ग्राफ को देखूं, the other type of graph is, let's say, something like this. So let's say something like this. Let's say इस तरीके का मेरे पास कोई ग्राफ है, तो मुझे ये चेक करना है कि कोई एक x के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास दो y वैल्यू तो नहीं आ रही। तो जब मैं देखती हूँ कि यहाँ पे अगर कोई एक x वैल्यू है, उसके लिए मेरी y की वैल्यू एक तो ये है और एक ये है, मतलब एक y की वैल्यू इतनी आ रही है और एक y की वैल्यू इतनी आ रही है। सो एक ही x के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरी y की दो वैल्यूज आ गई, राइट। सो मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है एंड दिस इज नॉट अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। सो अब इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर अगर मुझे जनरली बस टेस्ट करना हो कि कोई एक ग्राफ जो है, कोई एक कर्व है, वेदर इट्स अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन और नॉट, सिंपली आई कैन डू अ वर्टिकल लाइन टेस्ट। इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे कि आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो एट एवरी सिंगल पॉइंट। अब ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, ठीक है। सिमिलरली एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। अगर आप जो भी वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर रहे हो, राइट, अगर वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं कर्व से, दैट इज फाइन, देन इट्स अ फंक्शन, देन इट इज अ फंक्शन। बट अगर एक भी केस में ये दो जगह पे आपसे इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो पॉइंट्स पे, यहाँ पे भी दो पॉइंट्स, दो पॉइंट्स, दो पॉइंट्स, दो पॉइंट्स, दो पॉइंट्स, ठीक है। सो दिस इज अ फंक्शन, this is a graph of a function, this is not a function, okay, this is not a function, okay. And let's say if I ask you whether x square plus y square equals to 16, is this a graph of a function? So हमने देखा था this is nothing but a equation of a circle, right? So if you have not watched that video, I'll also link it down in the description. In the previous video, we talked about the distance formula and the equation of a circle. So this is nothing but I can see this is an equation of a circle. And ये जो circle है, इसका center क्या है? X, y. The center is 0, 0 and the radius is nothing but 4, right? So this is a circle, ठीक है। ये मेरे पास एक circle है, let me draw that, and yeah, so yeah, this is a circle जिसका center क्या है हमारे पास, origin, so 0, 0, okay, yeah, this is 0, 0, this is the center of the circle and the radius is 4, so this distance is 4. So now I want to ask whether this curve, whether this, yeah, so now I want to ask you whether ये जो भी curve हमने draw किया है, whether this is a function or not. So हम लोग क्या करेंगे, we will simply try and see using the vertical line test. हमने क्या किया, हमने एक vertical line draw की, किसी भी point पे आप draw कर सकते हो। यहाँ पे देखा कि इस x के corresponding y की एक value तो ये आ रही है और एक value ये आ रही है। That means एक x के लिए y के दो values आ रहे हैं, so y के values unique नहीं है, इसीलिए हमारे पास ये जो है function नहीं है, ठीक है। सो फंक्शन की डेफिनेशन हर एक पॉइंट पे बस हमें चेक करनी होती है। सो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, फॉर ऑल द एक्सेस इन द डोमेन आपके पास एक यूनिक वाई वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। सो इसको आप ग्राफिकली वर्टिकल लाइन टेस्ट का यूज करके चेक कर सकते हो वेदर अ पर्टिकुलर ग्राफ बिलोंग्स टू अ फंक्शन और नॉट। So this particular relation or equation does not belong to a function, so it's not a function, okay. All right, so moving on to another topic for today, which is what happens when you change units. So choice of units. So जब भी हम different different quantities को measure कर रहे होते हैं, जैसे distance को measure कर रहे हैं, length को measure कर रहे हैं, money को measure कर रहे हैं, speed को measure कर रहे हैं, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट जब क्वांटिटीज को आप मेजर कर सकते हो, इनको डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में आप मेजर कर सकते हो, और जैसे ही उनकी यूनिट्स चेंज होंगी, जो ग्राफ हम बना रहे हैं दैट विल चेंज। सो लेट्स say I have a relationship which is nothing but y is equals to x by 60, right?
और मेरे पास यहाँ पे y क्या है, y इज टाइम इन आवर्स, टाइम इन आवर्स, एंड x क्या है, टाइम इन मिनट्स, टाइम इन मिनट्स। सो अगर लेट्स से x की वैल्यू 60 है, मतलब x की वैल्यू 60 मिनट्स है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 आवर। सो ये रिलेशनशिप है y इज इक्वल्स टू 1. So x and y represent the relationship between time when x is in minutes and uh, y is in hours. ठीक है. So जब आपकी यूनिट यहाँ पे हमारे पास hours में है और यहाँ पे हमारे पास minutes में है, तो आपका रिलेशनशिप जो है इस तरीके का हो गया. और अगर मैं इसको प्लॉट करूं, इसको एक लेट्स से फॉर आफ्टर 1 मिनट वी विल प्लॉट. अब दूसरा रिलेशनशिप, सपोज मैंने यूनिट चेंज कर दी और अब जो एक्स है उसको मैं सेकेंड्स में मेजर कर रही हूँ. ठीक है, रादर देन मेजरिंग एक्स इन मिनट्स, आई एम मेजरिंग इट इन सेकेंड्स. ठीक है. सो अब मेरा रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, अगर मुझे y आवर्स में चाहिए, सो देन y विल बी इक्वल टू व्हाट, x डिवाइडेड बाय 3600. राइट, ये मेरा रिलेशनशिप हो जाएगा. राइट, क्योंकि मुझे हर एक मिनट जो है उसको पहले मैं मिनट्स में मेजर कर रही थी, अब मैं सेकेंड्स में मेजर कर रही हूँ. सो दैट इज हाउ द रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी. सो अब यहाँ पे जो y है वो आवर्स में है और जो x है वो सेकेंड्स में है. ठीक है. सो हमारे पास x और y के जो पूरा रिलेशनशिप होता है, that is changed when we change the unit. So you have to be very careful कि आप x और y किस यूनिट में मेजर कर रहे हो. जब आप कोई चीज को इंटरप्रेट भी करोगे, that will also depend on what is the unit of measurement. So unit of measurement is very important, be it you are measuring it for physics purpose or economics purpose, anything जो इस तरीके के सब्जेक्ट्स में, एंड जनरली ऑल्सो द यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, किस यूनिट में आप मेजर कर सकते हो, कर रहे हो. ठीक है. सो जैसे यहाँ पे माय ग्राफ लेट्स से, सो यहाँ पे लेट्स से x is 60, x is 120, x is 180. ठीक है. और यहाँ पे y की वैल्यू 1 2 3. राइट. सो दिस इज फर्स्ट रिलेशन दैट आई एम प्लॉटिंग. सो दिस इज माई x, दिस इज माई y. सो जब x की वैल्यू 60 मिनट्स है तो y की वैल्यू होगी 1 आवर, x की वैल्यू 120 मिनट्स, देन y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 180, देन y की वैल्यू 3. तो मेरे पास एक लीनियर रिलेशनशिप है, बट वो इस तरीके से है मेरे पास. ठीक है. बट अब मेरे पास जब सेकेंड्स में मैं मेजर कर रही हूँ, तो मुझे वैल्यूज जो नंबर्स हैं वो चेंज करने पड़ेंगे. सो जैसे अगर यहाँ पे मुझे 3600 है, सो यहाँ पे 7200 हम लोग रखेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2. सो मेरे जो यूनिट्स हैं वो प्रॉपरली बिल्कुल ही चेंज हो गए हैं. ठीक है. सो दिस विल बिकम माई न्यू इक्वेशन, दिस विल बिकम माई इक्वेशन. सो आपके नंबर्स बिल्कुल चेंज हो जाते हैं. सो बी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ किस तरीके से आप मेजर कर रहे हो. सो यहाँ पे मिनट्स में मेजर हो रहा है, यहाँ पे वी आर मेजरिंग इट इन मिनट्स, यहाँ पे वी आर मेजरिंग इट इन सेकेंड्स. ओके. So be careful in that. And there is a very popular saying कि there is not so जैसे आप न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ते हो, जैसे डेटा विल टेल यू वट एवर यू वॉन्ट इट टू टेल. सो देर इज अ वेरी पॉपुलर सेइंग कि आप डेटा को जो बुलवाना चाहते हो, जो भी आप नैरेटिव प्रेजेंट करना चाहते हो, यू कैन डू दैट बाय मेयरली ट्विस्टिंग नंबर्स हियर एंड देयर एंड प्रेजेंटिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. सो ऐसा काफी बार न्यूज में भी होता है, पॉलिटिशियंस एंड गवर्नमेंट, मल्टीपल पीपल present you a view that they want to propagate and tell using the data. ठीक है. So जैसे for a very important example if I take, so let's say I plot a graph. So I'm plotting a graph. Okay, I'm also plotting another graph. ठीक है. So लेट्स से आप एक जज हैं, आपको बिठा दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है, आपको एक कंपनी की परफॉर्मेंस दिखाई जाएगी, दो अलग अलग कंपनीज की, और आपसे पूछा जा रहा है कि विच कंपनी इज ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट, या विच कंपनी डू यू थिंक इज ग्रोइंग एट अ गुड रेट. ठीक है. और आपको सिर्फ दो ग्राफ दिखाए जा रहे हैं, प्रॉफिट ओवर द ईयर्स. सो दिस इज प्रॉफिट, वाई एक्सिस पे प्रॉफिट है और यहाँ पे ईयर्स. सो 98, 99, 88 इस तरीके से. ठीक है. सो 85,
86, 87, 88, ये 4 ईयर्स हैं, 1985, 86, 87 और 88, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, अब मैंने देखा, लेट्स से दिस इज 3, 4, 5 and 6. So let's say this is in crores, okay? Let's say crores, 3 crore, 4 crore, 5 crore, 6 crore, okay? So let's say these numbers are like this, ठीक है? So this particular relationship looks something like this, okay? अब I am plot, so this is company A, ये company A है, और company B क्या है? This is what? This is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, and top 6. This is 85, this is 86, this is 87, and this is 88, ठीक है? So यहाँ पे 85 में it is 3, and then it is 4, and then it is 5, and then it is 6, okay? So this is the graph that we have, okay? So ये हमारा प्रॉफिट वाला लाइन है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि विच कंपनी डू यू थिंक इज परफॉर्मिंग वेल, ठीक है। सो जस्ट मेयरली बाय लुकिंग एट द ग्राफ, इफ यू डू नॉट थिंक टू मच, यू विल सी कि हम देख रहे हैं ओवर द इयर्स ये ग्राफ थोड़ा फ्लैट है और ये थोड़ा सा स्टीप है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल दैट यू आस्क, दे विल से दैट कंपनी बी इज मोर प्रॉफिटेबल, इट्स गोइंग एट अ फास्टर पेस बिकॉज इसका ग्राफ जो है स्टीप है। बट अगर आप क्लोजली कंपनी ए एंड कंपनी बी का ग्राफ जो देखोगे, दे आर एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। यहाँ पे 85 में 3, 86 में 4, 87 में 5 एंड 88 में 6, सिमिलरली 3, 4, 5 एंड 6, एग्जैक्टली एवरीथिंग इज द सेम। बट what has happened, यहाँ पे हमने ग्राफ 3 से शुरू कर दिया है और यहाँ पे हम 1 से शुरू कर रहे हैं। सो बेसिकली हियर इट इज 2 एंड देन 3, सो 2 से स्टार्ट किया, यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया। सो आप अपना ग्राफ कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? अब यहाँ पे 1 से 10 के बीच में अगर नंबर्स ला रहे हो, या 1 से 10 आपने बहुत एक्सपैंड कर दिया है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से ला रहे हो, सो द वे यू प्रेजेंट योर ग्राफ विल कैन डिटरमिन व्हाट काइंड ऑफ line that you're going to get. So if you want to project a certain type of a graph, you can do that merely by changing the units and numbers को इधर उधर करके आप अपने ग्राफ को मॉडिफाई कर सकते हो। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन अंडरस्टैंडिंग द नंबर्स, बिकॉज एग्जैक्टली सिचुएशन सेम रहेगी, बट किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, दैट विल डिटरमिन हाउ इट इज गोइंग टू लुक, ओके। सो एज स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स और मैथ्स और एनी जनरल learned citizen, we should know how to differentiate between these things, okay? All right, so now let us move on to another topic for today, which is what happens when we shift the graph, okay? So shifting of graphs, shifting of graph, okay? So मान लो मुझे किसी ने कोई एक ग्राफ दिया हुआ है, अगर मुझे कोई एक रिलेशनशिप का ग्राफ ऑलरेडी दिया हुआ है, लेट्स से आई एम गिवन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका ग्राफ मुझे पता है कैसा दिखता है, वो जो है ग्राफ कुछ इस तरीके से लगता है। सो इट्स समथिंग लाइक दिस, या सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, although it's symmetric on both sides, so yeah, so it looks something like this, okay. So it touches here at 0 0 origin पे, ठीक है, and it opens on the top, ठीक है। This is my x axis, this is my y axis, ठीक है। So already आपको कोई एक y is equal to fx टाइप ऑफ ग्राफ अगर आपको दिया हुआ है, अब आपको काफी सारी अलग अलग चीजें निकालने के लिए बोला जा सकता है, राइट। सो जैसे अगर आपको ग्राफ निकालना है y is equals to fx plus c, सो आपका ग्राफ अब y इज इक्वल टू एफ एक्स नहीं है, अब y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी है। सो हाउ डू यू प्लॉट दैट, नोइंग कि मुझे पता है कि इसको मैंने इस तरीके से प्लॉट किया है। सो थोड़े थोड़े ट्वीक्स आप किस तरीके से कर सकते हो। सो अगर आपको पता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरीके से दिखता है, और मैंने अगर आपसे पूछा है कि मुझे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ प्लॉट करना है, तो वो आप किस तरीके से करोगे, ठीक है। सिमिलरली और क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। सो अब आपका फंक्शन जो है
x की जगह x प्लस सी हो गया। इसका क्या मतलब है कि पहले मेरा फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स था, सो माई x वॉज x हियर एंड हियर नाउ y इज इक्वल टू x प्लस सी स्क्वायर्ड। अब किसी ने आपको एक्स स्क्वायर का ग्राफ निकालना दे रखा है, अब आपको x प्लस टू स्क्वायर इसका ग्राफ निकालना है, तो अब आप वो कैसे निकालोगे? ठीक है। सिमिलरली इफ यू हैव y इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स, अब माइनस एफ एक्स का ग्राफ कैसे बनाओगे? नोइंग दैट y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनाओगे? अब यहाँ पे c जो है, सिंस लेट्स से c इज 2 हमने मान लिया है, तो मुझे यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू स्क्वायर्ड, राइट? एंड सिमिलरली आई कैन हैव y इज इक्वल टू f माइनस एक्स। f माइनस एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है, दैट मीन्स मुझे x की जगह माइनस एक्स प्लॉट करना है, so y equals to x minus x squared. So although for this graph it will exactly be the same क्योंकि this is nothing but x square, but अलग अलग ग्राफ्स में it will become different. So ये 3-4 ऑपरेशंस अगर आपको करने बोला जाए तो आप किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजी अपनाओगे टू प्लॉट दोज ग्राफ्स? ठीक है, तो हम सबसे पहले वी विल कंटिन्यू विद दिस एग्जांपल ओनली, y is equals to x square. I know this graph looks like this. अब मुझे y is equals to एफ एक्स प्लस सी जो है इसका ग्राफ प्लॉट करना है, मतलब मुझे y is equal to एक्स स्क्वायर प्लस टू का ग्राफ प्लॉट करना है। अब वो मैं कैसे प्लॉट करूंगी? तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि आई नो दिस हाउ दिस ग्राफ लुक्स लाइक, राइट? ओके, सो I know this is nothing but y is equals to x square. और अब मुझे ग्राफ जो है, दूसरा जो मेरा ग्राफ है वो मुझे प्लॉट क्या करना है? y is equals to x square plus 2. तो अब मैं अगर देखूं, जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 0 थी, अब यहाँ पे x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2. सो बेसिकली यहां से आके मेरा जो y वैल्यू है वो 2 यूनिट्स ऊपर बढ़ गया है। और ये जो है, पहले मेरी वैल्यू x की y की एक्स स्क्वायर थी, अब हर जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, सो हर जगह मेरी y की वैल्यू 2 यूनिट्स जंप कर रही है। सो एक तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 यूनिट्स, यहाँ पे 2 यूनिट्स, यहाँ पे 2 यूनिट्स, यहाँ पे 2 यूनिट्स, यहाँ पे 2, एवरीवेयर द वैल्यू इज 2 यूनिट्स ऊपर। ठीक है, सो एक तरीके से हो क्या रहा है, मेरा ग्राफ जो है इट इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस। ठीक है, लाइक व्हाट? So every point it is 2 units upper, right? And at every single point you will see that this distance is 2 units. ठीक है, so मेरा जो नया ग्राफ है it will look something like this, although it's a little shaky, but yeah, this is how it's going to look like. ठीक है, so every single point पे जब आपको y is equals to एफ एक्स का ग्राफ पता है और आपसे पूछा है y is equals to एफ एक्स प्लस सी का ग्राफ बताना है, सो c अगर पॉजिटिव है तो आप ये पूरा ग्राफ ऊपर ऊपर शिफ्ट कर दो हर एक पॉइंट पे, और अगर ये नेगेटिव है तो हर पॉइंट पे ये ग्राफ शिफ्ट कर दो नीचे। ठीक है, जैसे अगर एक लाइन होती, ठीक है, इस तरीके का कोई एक ग्राफ होता मेरे पास और मुझे बोलते एफ एक्स प्लस सी, तो हम क्या करते, हम अगर ये सी पॉजिटिव होता, लेट्स से दिस इज 0, सो हम सी यूनिट्स ऊपर जाते और हर पॉइंट पे जो है हमारी जो लाइन है वो सी यूनिट्स हम लोग ऊपर शिफ्ट कर देते। ठीक है, इस तरीके से हम इन ग्राफ्स को प्लॉट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट वन, सो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी दैट वी हैव लुक्ड एट। उसके अलावा अब हमें क्या करना है, जब y इक्वल्स टू एफ एक्स दिया हुआ है तो y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस सी को अगर प्लॉट करना है। ठीक है, सो अब मुझे पता है कि I know this is y is equals to fx and I have to plot y is equals to fx plus c. So अब बेसिकली हमें इसमें करना क्या होता है, देखो, फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ जब x की वैल्यू 0 थी तब मेरा फंक्शन, सो एट x इक्वल्स टू 0 माय फंक्शन वाज टेकिंग व्हाट वैल्यू, f0. So at so my function is taking at x equals to 0, my function has value f0, right? So at x equals to 0, my function has value f0.
अब f0 0 है, 1 है, 2 है, वो हो सकता है चेंज, बट जब x की वैल्यू 0 है तो मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या है, f0. बट फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन x की वैल्यू जब 0 है तो मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, fc, राइट. सो मेरा फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पे f0 नहीं है, वो fc है. तो अब अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू -c लिखूं, x की वैल्यू अगर -c लिखूं, सो एट x इक्वल्स टू -c my function has value 0. So -c plus c 0. So x की वैल्यू -c जो है उस पे मेरा फंक्शन वो वैल्यू ले रहा है जो x की वैल्यू 0 पे ले रहा था पुराना फंक्शन. ठीक है. सो बेसिकली अगर मैं देखूं, मान लो c पॉजिटिव है, लेट्स से c वाज 2, सो -c इज -2. सो मेरा फंक्शन जो है 0 पे 0 वैल्यू ले रहा था, अब मेरा जो नया फंक्शन है वो -2 पे 0 वैल्यू ले रहा है. ठीक है. सो वो -2 पे ये वाली वैल्यू ले रहा है, और ये जो है हर एक पॉइंट के लिए हो रहा है. दिस इज ट्रू फॉर एवरी सिंगल पॉइंट. सो इट इज लाइक कि ये पॉइंट पे मेरी जो ये वैल्यू आ रही थी, अब जब x की वैल्यू ये थी, अब मेरा पॉइंट इधर आ गया, ये थी तो इधर आ गया, तो पूरा का पूरा जो ग्राफ है वो शिफ्ट हो गया. बाय व्हाट यूनिट, c यूनिट्स टू द लेफ्ट. तो मेरा पूरा का पूरा ग्राफ जो है, अब ये वाले सारे पॉइंट शिफ्ट हो गए बाय c यूनिट्स. ये वाले पॉइंट्स क्या हो गए, शिफ्ट हो गए. सो c की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो आपका पूरा ग्राफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और c अगर नेगेटिव है तो आपका कर्व जो है राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है. अब जैसे, सो दिस वाज f x प्लस c, और हमने जो पुराना फंक्शन देखा था व्हाट वाज दैट, f x प्लस c. इन दिस केस व्हाट हैपेंस, इफ c इज पॉजिटिव, आपका पूरा जो ग्राफ है वो इट शिफ्ट्स अप और डाउन होगा. और अगर फंक्शन वैल्यू के अंदर इस तरीके से दिया हुआ है तो या तो लेफ्ट शिफ्ट होगा या तो राइट शिफ्ट होगा. इस तरीके से चीजें जो है चेंज होगी. ठीक है. सो व्हेन देयर आर चेंजेस इनसाइड द आर्ग्यूमेंट ऑफ द फंक्शन, देयर इज अ शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट और राइट. व्हेन c is added outside the function value, it shifts up or down. ठीक है. सो इस तरीके से जो है मेरा ग्राफ प्लॉट होगा. अब मेरी थर्ड, सो दिस ऑल्सो वी हैव सीन. माई थर्ड कैटेगरी इज y इक्वल्स टू -fx. ओके. सो y इक्वल्स टू -fx को हम लोग किस तरीके से प्लॉट करेंगे. ओके. सो दिस इज माई ग्राफ दैट आई नो. ठीक है. दिस इज माई y इक्वल्स टू fx. आई हैव टू प्लॉट y इक्वल्स टू -fx. सो बेसिकली हो क्या रहा है, जो नया ग्राफ होगा, जो पहले y की वैल्यू थी अब उसकी नेगेटिव वैल्यू हो रही है. ठीक है. सो एक तरीके से अगर आप देखो, पहले x की वैल्यू 0 थी, सो 0 का नेगेटिव 0, x की वैल्यू लेट्स से ये 1, y की वैल्यू लेट्स से 1 थी, तो जो नया y है उसकी वैल्यू नेगेटिव हो गई. सो इतनी हो गई, यहाँ पे इतनी वैल्यू, इसका एग्जैक्ट नेगेटिव हो रहा है. सो बेसिकली हो क्या रहा है, माई कर्व विल स्टार्ट लुकिंग समथिंग लाइक दिस. It, although it's actually the same, but yeah, okay. So it'll start looking something like this. ठीक है. सो इट इज एज इफ किसी ने बीच में यहाँ पे मिरर लगा दिया है और हम मिरर में से अपनी इमेज जो है देख रहे हैं. तो एग्जैक्टली अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है, और यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है. तो जो साइन है बाय का वो एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाता है. ठीक है. सो व्हेन यू हैव टू प्लॉट सच अ ग्राफ, इट इज लाइक कि आप बीच में आपने मिरर लगा दिया है और आप मिरर से ये वाली जो इमेज है या जो भी आपका पुराना ग्राफ है उसकी आप इमेज बना रहे हो. ठीक है. सो जैसे अगर मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन होती, सो लेट्स से इफ आई हैड अ इक्वेशन समथिंग लाइक दिस. ठीक है. इस तरीके से मेरे पास एक इक्वेशन होती, अब मुझे इसके लिए y इक्वल्स टू -fx का ग्राफ बनाना होता, तो वो कैसा लगता कि देखो इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे मिरर है तो इसको कॉपी करना है, और यहाँ पे भी मिरर है तो इसको कॉपी करना है. तो मेरा जो नया y इज इक्वल्स टू -fx जो था, y is equals to -fx जो था, it would look something like this. So original graph was this and now it will look something like this, कि यहाँ पे बीच में मेरे पास मिरर है तो इसकी इमेज यहाँ दिख रही है और इसकी ये जो इमेज है वो यहाँ दिख रही है. So your x axis becomes a mirror. उसके हिसाब से you have to plot the graph. Okay. So this category is also done, right? So इसको इस तरीके से assuming कि x axis जो है वो मेरा मिरर है,
तो आप किस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ करोगे। एंड यहाँ पे वाई एक्सिस मेरा मिरर बन जाती है। सो वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स। सो अब जैसे ये वाला ग्राफ अगर हम देखें, सो अब ये वाला जो केस है, दिस इज नॉट ए इंटरेस्टिंग केस, क्योंकि अगर आप वाई एक्सिस पे मिरर लगाओगे और ये एग्जैक्टली सेम ही है, तो ये पूरी जो नई इमेज बनेगी वो भी एग्जैक्टली सेम ही होगी, राइट। सो द न्यू कर्व, सो इफ दिस इज y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, माई y इक्वल्स टू f of minus x will exactly be the same, क्योंकि दिस इज ऑलरेडी लाइक दिस कि ये एक मिरर है और ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है। सो ये एग्जैक्टली सेम ग्राफ होगा जो ऑलरेडी प्लॉटेड है। बट सपोज मेरे पास एक लीनियर एक लाइन होती मेरे पास, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, ठीक है, राइट। सो लेट्स से दिस इज y इक्वल्स टू x, ठीक है, दिस इज y इक्वल्स टू, लेट्स से दिस इज y इक्वल्स टू x, ठीक है। और अब मुझे प्लॉट करना है y इज इक्वल्स टू माइनस x, so y is equals to minus x, so that is like what, so this is y is equals to fx and this is y equals to f of minus x, right। f of minus x is nothing but what, minus x। तो बेसिकली हम इसको किस तरीके से सोच सकते हैं कि यहाँ पे एक मिरर है और इस मिरर के हिसाब से आप चीजों को देख रहे हो। सो मिरर है और यहाँ से चीजों को हम कैसे देखेंगे, this will look something like this and this will look something like this, ठीक है। so the mirror is here and you are looking at it from this side, ठीक है। so ये चार चीजें आपने याद रखनी है। what is that, fx plus c, fx plus c, y minus x and f minus x। इसमें x axis, सॉरी दिस, इसमें x axis is the mirror, x axis मिरर है, उसके हिसाब से आपको कर्व ड्रॉ करना है। इसमें y axis is the mirror, इसके हिसाब से आपको कर्व ड्रॉ करना है। इसमें क्या है, शिफ्टिंग लेफ्ट और राइट। इफ c is positive we will shift to the left, shifting left or right, and if c is positive, if this is the case we will shift up, otherwise if it's negative we'll shift down, ठीक है। so shift up or down, okay। so these are the different cases that we could have, which we have to remember। so काफी बार आपसे इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ग्राफ दिया हुआ है तो शिफ्टिंग ऊपर नीचे किस तरीके से होगी। सो दीज 4 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। सो दिस इज काइंड ऑफ द समरी ऑफ वॉट एवर वी हैव स्टडीड, ठीक है। सो जैसे पहले केस में देर वॉज अ शिफ्टिंग अप, सेकेंड केस में देर वॉज अ शिफ्टिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। थर्ड केस में दिस वॉज माई मिरर, in this case this was my mirror and my graph was something like this। in the next case this became my mirror and my graph was exactly the same, क्योंकि they are already like mirror है towards with y axis at the center, उसके हिसाब से already mirrored है, ठीक है। so हमने linear equation के लिए देख लिया था कि if this is the mirror it will look something like this, ठीक है। so please remember these things, these are very helpful and these are the topics जो आपको बार बार अलग अलग चीजों में पूछे जाएंगे, and then it becomes a little hard to understand the complex topics if we are struggling with even the basics, ठीक है। so this is all for today's video। I hope you liked it, I hope you were able to understand it। if you have any questions, any queries, any suggestions, please use the comment box to let me know how did you like the video, or if you would like to see any different kind of videos। and I will see you in the next lecture। we will talk about what are linear functions, we will look at line equation of a line, what is slope, अगर 2 points दिए हैं तो line की equation किस तरीके से derive करें, and that will finish up our second chapter, which is the functions in one variable, and then we will jump on to the third chapter, which is polynomials, powers and exponentials। and yeah, I hope you're liking the kind of videos that I'm making, and if yes, please consider subscribing to my channel, and I will see you in the next lecture. Till then, take care and have a good day. Thank you so much.